أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الجابة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزلية والجود الثقفية والنقابة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنات ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی کافی حد تک وہ جو آیت ہے وہ ہمارے ساتھ میچ ہوتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجے اپنے رسولوں کو سوائے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. جب بھی رسول بھیجے ان کی اطاعت کی گئی. اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ رسول کے بھیجنے کے مقصد تھے. رسول خدا کے لیے خداوند عالم نے بتایا سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں لقد من برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کہتے ہیں لقد من علی المؤمنین، مومنین کے اوپر بہت بڑا میرا احسان ہے کہ میں نے ان کو نبی دیا. اور پھر کافی جگہوں پر بتاتا ہے کہ نبیوں کا مقصد یہ. لیکن اس آیت میں خداوند عالم بتا رہا ہے کہ نبیوں کے دو مقصد ہیں. ایک اس لیے میں نے نبیوں کو بھیجا تاکہ جب لوگ ہیں وہ ان کی اطاعت کریں لوگ اور ان کی پیروی کریں، ان کو فرما برداری کریں. اور دوسرا جب بھی عجب ہے، یہ بہت عجیب بات ہے میرے لیے. اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر گناہ کر کے. نبیوں کا دوسرا کام جو ہم ماہ محرم میں، ماہ رمضان میں انجام دیتے ہیں، اور ہم پہ ہیں ایسے اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب وہ ظلم کرتے اپنے نفس پر، اے محمد وہ تمہارے پاس آتے ہیں گناہ کرتے ظلم کرتے تیری ذات کے پاس آتے ہیں. جب تمہاری ذات کے پاس آتے ہیں تو اللہ پھر کیا بتاتا ہے، کہتا ہے جب تمہارے پاس آتے ہیں وہ لوگ پچھتاوا لے کر، اپنے گناہوں کو لے کر، ظلم کر کے، تو تم پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ. خدا کہتا ہے فاستغفر اللہ، جب وہ استغفار کرتے ہیں اللہ سے. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے واستغفر لهم الرسول، تو جب وہ رسول کے پاس جاتے ہیں تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. رسول نے بھی ان کے لیے معافی طلب کی اللہ سے. قرآن کی ایک آیت ہے، سچ کہتی ہوں وہ آیت جب میں پڑھتی ہوں نا میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ نے کائنات میں جس سے محبت کی ہے وہ محمد ہے. میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں نا کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں کہا اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے کان، اس کا دل، اس کا سینہ، اس کی پیٹھ، اس کا پیٹ، اس کی عمر. کسی نبی نے، اللہ نے کسی نبی کے ایک جسم کے پارٹ یعنی جسم کے حصے کی بات نہیں کی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اتنی محبت جب اللہ اس قدر محبت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پر میں عجب ہو گئی کہ اے اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم محمد سے محبت کرتے ہو پر تم محمد کی امت سے بہت محبت کرتے ہو. کیسے؟ اس
محمد کے لیے قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ لوگ گناہ کر کے تمہارے پاس آئے نا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اب سمجھے عربی تو آتی ہوگی نا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اے محمد تم ان کے لیے استغفار کرو. فعل امر آرڈر باب استفال فعل امر, محبت چاہت عشق خوشی سے تم ان کے لیے استغفار طلب کرو. وہ اللہ جس محمد کا عاشق ہے اس محمد کو کہتا ہے اس امت کے لیے استغفار کرو. یعنی اتنی محبت ہے اللہ کو ہم سے, اتنے برے لوگوں سے, پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور تو ان کے لیے رسول بھی استغفار کرتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ جاؤ کر جب آیا وہ شخص تمہارے پاس. شرط یہ ہے جب تمہارے پاس آیا. ہاں مومنات, پھر خدا بند عالم آگے کیا کہتا ہے؟ لوجد اللہ, پھر تو ہر حال میں انہوں نے پا لیا اللہ کو کہ اللہ کیا ہے, اللہ جو ہے وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جسے ہم نے کہا تھا نا کہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو ہاں مومنات, خدا کہتا ہے کہ آپ لوگ وسیلہ بناؤ اللہ کو, اللہ کے لیے اپنے نبی کا وسیلہ بناؤ. عاشور کا دن بڑا سخت دن ہوتا ہے. اس دن سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھے کیا نہ پڑھے, کیونکہ اس وقت صرف اور صرف شہادت حسین ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. ہاں مومنات, ایک دفعہ خدا کہتا ہے کہ وسیلہ بناؤ. کس کو وسیلہ بناؤ؟ خدا کہتا ہے وسیلہ بناؤ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو وسیلہ بناؤ. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی وسیلے پر, امام حسین کی طرف آ جاؤں گی. کتنے میرے علماء کو ابھی تو یوٹیوب اور یہ جو بہت زیادہ ایسی ٹی ویز کھلی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہمارے جنریشن کے دماغ میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ وسیلہ جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے. آپ جب وسیلہ کسی کو بناتے ہو تو یہ شرک ہوتا ہے, کیونکہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہو. میں جلدی سے صرف آپ کو آیتوں کے ایڈریس دے دوں گی. کیا کہتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی, تلاش آپ کو کرنا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں آپ دیکھو گے خدا بند عالم خود کہتا ہے ایک دم کلیئر, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں, کوئی اس میں چھپی ہوئی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ. پوری آیت پڑھی ہے, میں تو صرف آیت کے چند لفظ پڑھ رہی. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس تک پہنچنے کے لیے تلاش کرو وسیلہ. کلیئر, کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. تو کس طرح سے ہمارے جوانوں کے دماغ کو گھماتے, سب کی جو دشمنان ہم کہتے ہیں شیعہ ہے یا اسلام ہے, ان کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے جوانوں کو کسی طریقے سے اہل بیت سے ہٹایا جائے, کہ پوری طاقت لگا دی ہے انہوں نے. تو ہاں مومنات, لیکن کیسے طاقت لگا سکتے ہیں جبکہ قرآن کلیئرلی بات کر رہا ہے. ہم نے دیکھا بہت زیادہ ایسی جگہوں پر وسیلے کی بات ہوئی. ہم نے جب پڑھا, کل میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب فرعونیوں کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا, تقریباً کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں عذاب نازل ہوا, ہر مہینے میں عذاب نازل ہوتا تھا. تقریباً 30 مہینوں میں ان کے اوپر نازل ہوئے. جب عذاب نازل ہوتا, ایک کافر کو بھی پتا ہے, ایک کافر جو کہ خود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بلا اگر ٹلے گی تو کسی وسیلے سے ٹلے گی, اور جو وسیلہ ہوگا وہ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا, وہ خدا کی مرضی کا ہوگا. سب دوڑ کے بھاگے حضرت موسیٰ کی طرف, سب نے وسیلہ بنایا. عجب بات نہیں ہے کہ پہلا انسان جب پہلی مرتبہ زمین پہ آتا ہے اور پہلی مرتبہ توبہ ہوتی ہے اس انسان کی, آدم نے پہلا انسان, پہلی توبہ, پہلی خطا, اور پھر پہلا ہی اللہ نے وسیلہ قرار دیا اس کو. فتلقت کلمات الآدم, کچھ ہے نا, آدم کو میں نے کلمات سکھایا. فتلقا, اللہ کہتا ہے میں نے ملاقات کروا دی. کس کو؟ کلمات, کچھ ایسے الفاظ کی. پھر اس کی وجہ سے آدم نے وہ پڑھے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی. بہت زیادہ کتابوں میں, اہل سنت اہل تشیع کی کتاب میں موجود ہے کہ فتلقا کلمات یا حسن یا محمد
या अली या हसन या मोहम्मद या अली या फातिमा या हसन या हुसैन। मुझे नहीं पता कि रूम और इजिप्ट की तरफ से एक तख्ती मिली, एक लकड़ी मिली, जब सर्च की गई उसको तो वो तख्ती थी हजरत नूह की तख्ती। मैंने आपको बताया था ना कुरान में अलवाह व दसर, अलवाह का मतलब होता है कि लकड़ियों की ना तख्तियां बनी हुई होती हैं ऐसी उसको कहते हैं अलवाह। अलवाह में से एक लकड़ी मिली हजरत नूह की। अभी भी आप सर्च करोगे ना, मेरे पास वो था, उस पर साफ साफ कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, और जब उन अल्फाज को सर्च की गई ना तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ए अल्लाह, जब उसको ट्रांसलेट किया गया, ए अल्लाह इन कलमात के सदके में मेरी कश्ती को इस तूफान में महफूज रखो। आज भी वो कश्ती मौजूद है, किसी म्यूजियम में वो टुकड़ा मौजूद है, और किसी म्यूजियम में उन लोगों ने छुपा दिया है। लिखा था ए अल्लाह इन कलमात के सदके में मेरी कश्ती को इस तूफान से बचा। वो कलमात कौन से थे? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आपने ज्यूस को कभी सुना है इबादत करते हुए? जब दीवार के साथ, अब यूट्यूब पे लगाओ, जब दीवार के साथ ज्यूस इबादत करते हैं ना, आप उनके अल्फाज को गौर से पढ़िएगा। हो सकता है कि इसको डिलीट कर दे, छुपा दे। वो जब पढ़ते हैं ना, उसमें आवाज आती है मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये अल्फाज आते हैं ज्यूस की इबादत में। अब जाके सर्च करोगे ना ज्यूस की इबादत, जो दीवार की तरफ वो करते हैं, उसमें से कौन से अल्फाज निकलते हैं? ये अल्फाज निकलते हैं। अजब है कि हम लोगों को वसीले से रोका जा रहा है, हालांकि कुरान, अंबिया, काफिर भी खुद वसीला बनाता है। जब फिरौन डूब रहा था तो उसने क्या कहा था? ए मूसा अपने खुदा से कहो मुझे बचा ले। खुदा ने कहा ए मूसा, अगर वो ऐसा कहता ना कि ए मूसा मेरे खुदा को कहो मुझे बचा ले, तो मैं उसको बचा लेता। कितना वो गफूर और रहीम है, कैसे उसने हमारे लिए वसीले खल्क किए। हाँ मोमिनात, मैं कुर्बान हो जाऊं उस इमाम पर जिसने हम लोगों को इस तूफान में महफूज रखा। मैं कल देख रही थी कितनी माएँ अपने बच्चों को तैयार करके आई थी, जिसके घर में ये मजलिस हुई, बच्चों को तैयार करने वाले लोग, बच्चों के लिए सामान मुहैया करने वाले लोग। ऐसा नहीं है कि ये एहसान है हमारा इमाम पर, उसका एहसान है हमारे ऊपर कि इतने गुनाहों के बावजूद भी कौन सी ऐसी चीज देखकर हमें चूज कर लिया। मैं सुबह से देख रही हूँ, हर कोई अपना पार्ट अंजाम दे रहा है, जिसको जो चीज आती है वो अंजाम दे रहा है इमाम हुसैन के लिए। कोई आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो उनका है कि क्या उन्होंने देखा और हमें चूज किया। हाँ मोमिनात, मैं कहूँगी कि खुदावंद आलम ने रसूल खुदा से कहा ना, इज़ा जाअका, जब आए तुम्हारे पास, तो वो मोहम्मद कहते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो रसूल ने कहा हुसैन और मोहम्मद में फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुदा कहता है वो इज़ा जाअल हुसैन, अगर कोई हुसैन के पास आता है, हम तो इमाम हुसैन के पास आए ना, हम तो उसके पास आए हैं। हाँ मोमिनात, सूरह हूद मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ आज सूरह हूद की आयत को, जो मैंने छोड़ दी थी इस मजलिस में। सूरह हूद की आयत नंबर है 80। बड़ा खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद पर सलावत। हमने सब पूरा किस्सा किया। सूरह हूद की आयत नंबर 80 में है कि जब लोगों ने, कौम लूत ने हजरत लूत के ऊपर हमला किया, मेहमानों को कहा मुझे दे दो, उस वक्त हजरत लूत की ऐसी हालत थी, तारीख लिखती है कि हजरत लूत जो थे वो अपने आप को खो बैठे थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बताया था किस तरह से एक बाप कह सकता है कि ये मेरी बेटियां ले लो, पनाती मेरी बेटियां ले लो।
खुदारा इन मेहमानों को छोड़ दूँ। ऐसी हालत थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो समझते थे जमीन और आसमान उनके लिए तंग हो चुके, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम समझ सकते हैं हजरत लूत की हालत जब उनकी कौम ने हमला किया। पूरा हमने किस्सा किया कुरान की आयत से। उस वक्त हजरत लूत की जबान से कुछ लफ्ज निकले। पता है क्या है वो लफ्ज? कहा, हजरत लूत कहते हैं, काल लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकुनिन शदीद। ए काश, एक काश, एक आह भरी हजरत लूत ने, ए काश कि जिस तरह से अब मेरी हालत है और तुम लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, ए काश मेरे पास इस वक्त मेहदी होता और 313 उसके सिपाही होते। रुकनुन शदीद, 313 सिपाही। बहुत ज्यादा तमाम उलमा ने इस बात को तफसीर की है। कुव्वतन ओ आवी यानी इमाम मेहदी, रुकनुन शदीद यानी उसके 313 सिपाही। क्या कहा कि ए कौमे लूत, अगर इस वक्त मेरे साथ मेहदी होता और उसके 313 सिपाही होते तो तुम मेरी ये हालत कभी ना करते। हाँ मोमिनात, अब आज हम सब लोग इमाम हुसैन की तरफ आए हैं, लेकिन हमारे साथ वो एक इमाम भी मौजूद है जिसके लिए हर नबी ने कहा था काश मैं उसके दौर में होता। वो है इमाम मेहदी आखिर ज़मां। मैं जब पहली दफ़ा हौज़े में गई, टीनेजर थी, जब मैं हौज़े में गई ना तो मैं मातम नहीं करती थी, बहुत हल्का हल्का बस ऐसे से हाथ मार लिए चली गई। सब जो मेरी थे हमारे साथ, वो जो लड़कियां थी, सीनियर थी, जूनियर थी, उन्होंने मुझे कहा मातम करो। मैं नहीं करती थी मातम। मैंने कहा नहीं, कर लिया ना काफ़ी है। जिस सीनियर बस हाथ मार लिया थोड़े से। मुझे ये नहीं पता था, मेरी एक सीनियर दोस्त थी, उसने आकर मुझे एक बुक पकड़ा दी, कहा रात को ये बुक पढ़ना। वो बुक मैंने पढ़ी रात को, वो तो काफ़ी उसमें ऐसी चीज़ें थी, लेकिन उसमें एक आयतुल्लाह की बात थी। इसके बाद मैं आती हूँ मसाइब की तरफ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हुसैन के मसाइब को कैसे शुरू करूँगी, कहाँ से शुरू करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मेरे हवास नहीं मिल रहे अपनी जगह, मुझे जगह नहीं मिल रही, कहाँ से शुरू करूँ। उसने जब मुझे बुक दी, मैंने उस बुक में पढ़ा कि बहुत बड़े आयतुल्लाह, वो पूरा नाम में डिटेल में नहीं जाती, वो कहते हैं कि वो आयतुल्लाह जो थे वो बहुत बड़े आयतुल्लाह थे। जब मिंबर पर बैठते थे उनका नाम था, उनका घमंड था एक तरह से। वो जब मिंबर से आते थे ना, कोने में चले जाते थे, हल्का हल्का मातम करके चले जाते थे। एक दफ़ा ये हुआ कि वो आयतुल्लाह जब मिंबर से उतरे ना, जैसे ही हल्का बांध के मातम करते हैं ना, हम सब मातम करते हैं ना, जैसे रात को मातम होता है, दिन को मातम होता है, अभी भी मातम होगा, जब ये हल्का बांध के मातम करते हैं ना, एक दफा वो आयतुल्लाह, बड़ा आयतुल्लाह, वो इतना वो घुस गया हल्के में और मातम किया, इतना मातम किया, अपने सारे कपड़े फाड़ दिए, बेहोश हो गए, उसको हॉस्पिटल ले गए। फिर जब होश में आया ना तो वो रो रहा था। जब उसको पूछा कि क्यों आखिर क्या हो गया, कहा मैं जैसे ही मजलिस पर से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वक्त का मेहदी, इमाम मेहदी, जहाँ वो हल्का बांध रहे थे ना, कितनी यहाँ पर माशाल्लाह से नोहे खान है ना, कहा जब हल्का बांधा गया था ना नोहा पढ़ने, वहाँ मेरा मेहदी आया। उसने इतना मातम किया, उसने अपने कपड़े जमीन पे बैठ गया। हाँ मोमिनात, जब मेहदी इस वक्त मातम कर रहा तो हम कौन होंगे। तारीख लिखती है वक्त आया, ये अभी वक्त शुरू हो रहा, ये वो वक्त है ना कि जब इमाम हुसैन का सब कुछ चला गया, अकबर दे दिया, कासिम दे दिया, असगर दे दिए, अब्बास दे दिया, बचा क्या, कुछ ना बचा। मेरी रूह तड़प रही, मौला मैं कैसे मसाइब शुरू करूं, आज का दिन मसाइब करे रोने का होता। 1,24,000 अंबिया जमीन पे आ गए,
इमाम हुसैन का सब कुछ खत्म। इमाम हुसैन खैमे में आके बहन से कहते, बहन मुझे कुर्ता दे दो, पुराना कुर्ता दे दो। बहन ने कुर्ता दिया, लेकिन उस पुराने कुर्ते को इमाम ने फाड़ा। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भैया क्यों आप इसको फाड़ रहे हो? कहा, मैं नहीं चाहता, अरबों का रिवाज है, जब किसी पे हमला होता है तो उसके कपड़े उतार देते हैं, उसके पीरहन उतार देते हैं। मैं नहीं चाहता मेरा कपड़ा, मेरी कमीज उतारी था। हाँ ज़ादारान इमाम ने क्या किया, बीबी ज़ैनब से कहा, इस कुर्ते के ऊपर मुझे एक और कुर्ता दे दो। बीबी ने कहा, भैया इस कुर्ते के ऊपर आप एक और कुर्ता पहन रहे हो? मैं कुर्बान हो जाऊं वक्त के इमाम पर कि उस इमाम को उस वक्त भी अपने लोगों की फिक्र है। कहा, मैं चाहता हूं कि कोई आए ना मेरे पास लूटने के लिए तो उसके पास ये कपड़ा, ये कमीज हो, वो खाली हाथ ना जाए। हाँ ज़ादारान इमाम, वो वक्त आता है कि हुसैन घोड़े पर सवार होते मुझसे कहते हैं कि आप रुखसती क्यों नहीं पढ़ते? मैंने आज तक जितनी मजलिसें पढ़ी है, मैंने रुखसती नहीं पढ़ी इमाम हुसैन की। किस तरह से रुखसत हुए, मुझ में हिम्मत नहीं है और ना कि मुझे लगता है मैं कभी पढ़ पाऊंगी ये रुखसती। हाँ ज़ादारान इमाम, वो वक्त आता है कि जब इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होकर जब मैदान की तरफ आते हैं, 30,000 लोगों ने हुसैन पे हमला किया। 30,000 लोग थे, फातिमा का बच्चा अकेला था। 30,000 लोगों ने हमला किया। लोगों ने सोचा कि अली अकबर की छाती से बर्छी निकाल कर हुसैन टूट गया, अब्बास की आंख से तीर निकाल कर हुसैन टूट गया। अरे समझने लगे कि कासिम के जिस्म को पामाल देकर हुसैन टूट गया, असगर को दफना के हुसैन टूट गया। पर हुसैन ने वो जंग की कि कोई सोच भी नहीं सकता। अचानक ऐसा हुआ कि हुसैन को चारों तरफ से तीर मारे गए। जब तीर मारे गए ना हुसैन को, हुसैन झुक गए। अरे जुल्जनाह पे हुसैन झुके, ऐसे झुके, आवाज आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। अरे जैसे ही हुसैन और झुके, एक लाइन ने बड़ा पत्थर लिया, ज़हरा के बेटे की पेशानी में दे मारा। हुसैन संभल न पाया, अचानक पीछे से ऐसा तीर मारा, हुसैन ने आगे से खींच के निकाला। अभी हुसैन संभल न पाया कि हुसैन के सर पे ऐसा वार किया गया कि मेरे हुसैन की आंख बंद हो गई। शहीद मुताहरी कहते हैं, हाँ ज़ादारान इमाम, शहीद मुताहरी कहते हैं, हुसैन जब खैमे से निकले थे ना, हुसैन जब खैमे से निकले थे, इतनी प्यास थी हुसैन को कि हुसैन जब सूरज की तरफ नजर करते थे तो हुसैन को आसमान और खुद के बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा प्यासा हुसैन, साइंस कहती है जैसे जैसे खून बहता है प्यास की शिद्दत बढ़ती है। मेरे हुसैन की शिद्दत प्यास किस कदर बढ़ गई। हाँ ज़ादारान इमाम, मैं आती हूँ उन मसाइब की तरफ जो मैं नहीं पढ़ पाती, जो मेरी रूह को लर्जा देते। मैं आती हूँ उन मसाइब की तरफ। अगर किसी को शर्म आती है ना रोने में, तो चादरों को ऊपर कर लो, सीने पे हाथ मार के कहना, या ज़हरा जाक हम आ गए। हाँ ज़ादारान इमाम, जुल्जनाह ने देखा, घोड़े ने देखा, हुसैन जख्मों से चूर है, जानवर वफादार निकले।
झुकाया, अपने आंखों को छुपाया। अरे छुपाने के बाद सुलझना खड़ा हो गया सामने से। क्यों कहते हैं सुलझना को तीर लगे? अरे जैसे तीर आए तो सुलझना अपने ऊपर ले लिया। अरबों में जब जाहिल अरब थे ना, उनके अंदर एक कानून था कि जब किसी को शिकार करना था उसको बड़े खाने में, बड़े गड्ढे में, अरे चारों तरफ से गड्ढे करते और उस गड्ढे में उसको फंसा देते। जब वो फंस जाता ना तो उसके ऊपर हमला करते, पत्थर मारते, इतने पत्थर मारते कि वो मर जाता। अरे हुसैन, मुझे नहीं पता क्या दुश्मनी है ज़हरा के बेटे के साथ। जब हुसैन को सुलझना ने गड्ढे में छुपाया, चारों तरफ से लहीरों ने घेरा। अरे पत्थर तो मारे, गरम रेत लेकर हुसैन को मारा। अरे तबर्रुक की तरह ज़हरा के लाल पे हमला हुआ। अरे हमला होना था, हुसैन ने मिट्टी का तकिया बनाया, सर को रखा, तलवार को कहा बस ऐसे लगता तेरे बाजुओं को पकड़ के खड़ा। हाँ ज़हरा के इमाम, अरे वो वक्त आता है कि जब हुसैन ने महसूस किया, क्या महसूस किया कि सीने पे कुछ वजन है। क्या देखा? शिम्र सीने पर मौजूद है, तले ज़ैनबिया से ज़ैनब आती है। अरे तीरों और तलवारों पे भागती आती है। उमर साद से कहती है, ए उमर साद, मोहम्मद का नवासा, ज़हरा का बेटा। अरे जैसे शिम्र, अरे हुसैन की छाती में बैठा, हुसैन ने आँख खोल के कहा, ए शिम्र, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? अरे इमाम चाहते हैं वहाँ पर भी शायद वो चला जाए। कहा, ए शिम्र, अपने आप को लाइन ना बनाओ, हिदायत ले लो, मेरी छाती से हट जाओ, मैं वैसे ही थोड़ी देर में चला जाऊंगा। हाँ ज़हरा ने इमाम हुसैन की छाती पे शिम्र, अरे शिम्र ने कुंद खंजर लिया, हुसैन के जैसे गले में चला।